I was once a sky's first landing. A home written in wings. Ten kilometers from Srinagar lies Hokarsar, a wetland. Where continents meet. And life arrives every winter. कितनी गंदगी फैली है इसमें कि हम सोच भी नहीं सकते। पहले इसका पानी हम पीते थे, नहाते थे। आज अगर हम इसमें जाएंगे तो मेरे हिसाब से जिंदा ही नहीं बचेगा इंसान। ऐसी हालत है हमारी होकरसर में। In 2020, healing was promised. Instead, a wound was carved. A 60-foot channel drained its life and silence followed. होकरसर वेटलैंड इससे पहले एक खुशनुमा होकरसर वेटलैंड था। जिस कदर ये चैनल बनी, जब बनी तो होकरसर एक मुर्दे लाश की तरह हमारी पड़ी रही यहाँ। Hokarsar has been a wetland which has been with us for quite some time. It's a Ramsar Convention site and it's known as Queen of Wetlands because you have the migratory birds coming in the winters and their habitat is this Hokarsar. But unfortunately, some of the works which were recently conducted in Hokarsar for flood mitigation by dredging out a channel right across the wetland, a deep dredging channel has been made there and that has drained off the complete waters of Hokarsar. Mez gomut sir. Yat mez chu gomut barabar tram chet gomut. Ye chhne phatan yith pait sir. Yat ch talag maan khuzmus khoshki. Yat chhne aabi. Aab ch yat aham winken zarat. Yat kya karan kam birds in, kam tourist in yor. No one heard me, but silence found a listener. बहुत से दरवाजे खटखटाए, बट वहाँ से नाउम्मीदी ही मिली। तो राशिद साहब ने फिर हमें ड्यूकाम साहब तक पहुँचाया और फिर उसके बाद वहाँ से एक अच्छा इनिशिएटिव निकला। हमारे साथ न्यूट्रल कमिश्नर कश्मीर मिस्टर पॉली साहब और हमारे साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आज इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। होकरसर क्योंकि श्रीनगर के नज़दीक है, ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पर आता है। काफ़ी लोग यहाँ आ सकते हैं, टूरिस्ट यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर आ सकते हैं। इसमें एक दिक्कत रहती थी, वाटर लेवल कम होती थी, तो इस साल जो हमने मिट्टी से कुछ इंतज़ाम किया है जिससे कि ये वाटर लेवल बनी है। आने वाले दिनों में हो सकता है इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट अपने दोनों साइड गेट लगाएगा ताकि यहाँ वाटर लेवल अच्छी रहे। We suggested to them that some measures had to be taken and this water has to be retained, something has to be done. So as a result, it was thought that hydraulic gated regulators to regulate the inflow to the wetland and also the outflow from the wetland will have to be constructed. A project was conceived by the Irrigation and Flood Control Department and that took over, and we saw that the project came up very nicely. We carried with the help of Irrigation and Flood Control Department, we created and constructed 2 massive structures in the form of inlet and exit gates, with the help of which we are able to regulate the water flow, water regime inside the Hokarsar wetland. And since those gates allow us to have desired and optimum level of water inside the Hokarsar wetland. अभी हम सजेड के पास है और जहाँ पे होकरसर का एग्जिट गेट बना हुआ है, और जहाँ इस एग्जिट गेट से एक फ़ायदा ये हुआ है कि पानी को अच्छी तरह से होल्ड किया गया है, जिससे कि होकरसर का जो बेशतर हिस्सा है, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द लैंड, वो पानी से भरा हुआ है। और इन गेट्स की वजह से आज कई सालों के बाद होकरसर के अंदर फिर से पानी जो है कोने कोने में पहुंच चुका है और
और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी इसके ऊपर मेंटेनेंस बरकरार रहेगी। We are seeing that water is now entering that wetland. It is spreading its expanse in that wetland, and very soon, within a day or two, we will be achieving the minimum required level of 1.2 meter that is supposed to be kept there. And even in this condition, when the drought was hitting the valley, this has been achieved, and it will further also be improved. Avifauna of that area will be restored. The wise use of that wetland will be restored, and the stakeholders of that place will be benefited. So we will again regain that sheen that had been lost, and we are hopeful that it is in the offing very soon now. The mitigation measures that have been carried out in the Hokersar wetland their effects are quite visible. As we see the Hokersar wetland right now, and if we compare it with maybe some 3 years, 4 years back, there were the areas which were completely dry, but they are right now inundated in the water. इस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे अभी आप कह सकते हैं कि 6 फीट का पानी है अभी यहाँ पे। मैं होकरसर में बोट राइडिंग कर रहा हूँ अभी, कम से कम 2020 से मैं इस चीज़ के लिए वेट कर रहा था कब मैं अपने होकरसर में फिर से बोट चला सकूं उसी तरीके से जिस तरीके से मैं पहले चलाता था। ऐसा भी एक टाइम था जब मैं पूरे एरिया मतलब स्कूटी होती थी, कभी बाइक होती थी, गाड़ी में होते थे, हम पूरा एरिया देखते थे, मतलब ये वेडर्स कहीं पे नहीं मिलते थे। ये मतलब अगर कहीं पे यहाँ पे पानी होता था तब जाके मतलब लकीली मिल जाते हैं। आज अब देखिए मतलब जो मतलब मैंने 1 साल देखे ना, पूरे 1 साल जो बर्ड्स मैंने 1 महीने में 2 महीने मतलब इस तरह जून जुलाई अगस्त, आज मैं वो जो मैं एक महीने में एक देखता था, आज मैं वो सारे बर्ड्स एक ही जगह पे देख रहा हूँ। मतलब ये एक अचीवमेंट है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना पानी है, जबकि पिछले 4-5 सालों से होकरसर के अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। मैं इस टाइम जिस जगह पे बैठा हूँ या यहाँ पे आया हूँ, मेरे दोस्त भी है यहाँ पे। एक ज़माने में हम यहाँ पे आया करते थे, यहाँ पे हम गाड़ियाँ साथ लेके आते थे और यहाँ पे मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये डेजर्ट जैसा बन चुका है। रिसेंटली जब यहाँ पे कुछ 1 साल पहले यहाँ पे फिर एक टेंडर्स निकाली गई, जिसकी वजह से मतलब गेट भी बन गए, गेट भी कंप्लीट हो गए, उसकी वजह से यहाँ पे अब मेंटेनेंस रही है पानी की, जिसकी वजह से अब बर्ड्स भी आ रहे हैं। और ये आप मेरे सामने देख सकते कि मेरे फ्रेंड्स भी यहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे हैं इन बर्ड्स की। और ये बहुत रेयर बर्ड्स है यहाँ कश्मीर के लिए, जो कि यहाँ होकरसर में आते हैं। रेस्टोरेशन के ऊपर जितना भी काम सब ने किया है उसमें मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। अब चाहे उसमें अथॉरिटीज़ हो, लोकल्स हो या फिर कुछ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो। One voice became many. मैं ड्यूकम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद सबका शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली अब्दुल-रशीद साहब जिन्होंने हमारी बात उन तक पहुँचाई। तो मैं अपनी तरफ से उनका हमेशा आभारी रहूँगा कि उन्होंने हमारी बात सुनी वक्त ब वक्त। हम तो कुछ नहीं कर पाते अकेले, उनका जो योगदान है इसमें वो तो तारीफ़ काबिल है। And people chose to remember. Golden sunset. Birds rising together. I am breathing again. Hokarsar lives if we listen.